Sushil jumped into bed just when it was time to go to school. Subal looked at him in surprise and asked him, "Why are you still in bed? Aren't you going to school?" "I have a terrible stomachache," said Sushil promptly. Subal saw through the trick at once and said to himself, "Very well, I know how to teach you a lesson." He turned to Sushil. "A stomachache, eh? You'd better stay in bed then. You are not to go anywhere. I had bought some lozenges for you, but you'd better not have them. Just lie down quietly while I go and prepare a brew for your stomachache." Subal locked his son in and went off to prepare a bowl of a really bitter brew. Sushil was in a quandary. He loved lozenges and loathed the brews his father made, and he was dying to go to the Boses, but now there seemed to be no chance. When Subal returned to the room with a big bowl of bitter brew, Sushil jumped out of bed saying, "I am fine now. My stomachache has gone. I'm going to school." "You are not going out anywhere today," said Subal. "Drink this and lie here quietly for the rest of the day." He forced the brew down Sushil's reluctant throat, locked the door from outside, and left. Sushil burst into tears and wept buckets the whole day long. He told himself, "If only I could be as old as my father, I'd be able to do whatever I wanted to." Subal sat outside and thought, "My parents pampered me so much when I was young. I could never study as much as I ought to have done. If only I could be young once again, I'd spend all my time studying hard." And it so happened that the goddess who grants wishes was passing by just then. She heard both Subal and Sushil and decided to grant them both their wishes. Appearing before Subal, she said, "Tomorrow morning, you will be as young as your son." To Sushil, she said, "From tomorrow, you are going to be as old as your father." Both father and son were delighted. Usually, old Subal could never get any sleep towards the early part of the night, but around dawn, he was fast asleep and slept late. But when the sun rose the next morning, he almost jumped out of bed and discovered that he had grown quite small. The teeth he had lost were all back. The clothes he had been wearing were too big for him now. His shirt sleeves were longer than his arms and almost touched the floor. His dhoti swept the floor and he almost tumbled in it. Sushil, who woke up at the crack of dawn and ran about the house, was hardly able to open his eyes. When he finally did succeed in shaking off his sleep, it was only because his father was making such a racket outside. Sushil woke up to find that his clothes were really tight. Nearly half his face was covered with a salt and pepper beard and moustache. There was no trace of hair that had covered his head. He was shocked to discover a gleaming bald pate in its place. What seemed even stranger was that he did not want to get out of bed, as he did on other days. He yawned, turned over on his side, and decided to stay in bed. Both father and son had got exactly what they had wished for. What they had not anticipated were the complications. In the past, Sushil had always thought that once he was old and independent, he'd spend his entire time climbing trees, swimming in the pond, and roaming wild with his friends all day long. There would be no one to stop him from doing what he wanted. When he woke up that morning, he felt no urge to climb trees. He spread a mat on the veranda and sat there lost in thoughts. Finally, he decided that he should not give up the things he was fond of. He stood up and decided to try his usual antics. He went to a nearby olive tree and made several attempts to climb it. He was astounded to find that climbing a tree was beyond him now. After several attempts, he hung on to one of the lower branches, which gave way under his weight and broke into two. He lay flat on the ground. Passers-by were amazed to see an old man trying to climb a tree, and when they saw him rolling on the ground, they burst out laughing. Sushil's friends, who had played with him just the previous evening, took one look at the grouchy old man and ran for their lives. They had no idea that it was Sushil himself. Sushil used to think that the moment he was old and independent, he would play with his friends all day long. But now the very sight of Gopal, Akshay, Harish, and Nanda put him in a bad mood. He hated the thought of their noisy games and did not want them to disturb him.
You would remember, of course, that once upon a time, Subal had told himself that if he ever got back his lost childhood, he would lock himself up in his study and pore over his books all day long. Now that he was young again, he hated the very thought of studying or going to school. Sushil was very angry with him and said, "Father, aren't you going to school today?" Subal looked down, scratched his head, and said, "I can't. I've got a stomachache." "Stomachache?" said Sushil angrily. "Don't try your tricks on me." अब इसी स्टोरी को हम हिंदी में भी सुन लेते। बहुत प्यारी स्टोरी है। व्हेन विशेष कम ट्रू, मतलब हमारी इच्छा जब पूरी होती है तब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होने वाला है। बहुत मज़ेदार कहानी है। ये जो सुशील है ये जम करके फ़ौरन अपने बेड में आके सो जाता है। जब उसे स्कूल जाने का टाइम होता है तभी ये सब होता है। उसके पिताजी सुबल जो है ये उसकी तरफ देख के बहुत हैरानी से उसे पूछते हैं, क्या हुआ, स्कूल नहीं जाना है? तब वो बोलता है कि मेरे पेट में बहुत पेट दुख रहा है, मेरे बहुत पेट दुख रहा है। पापा को पता है ये सब स्कूल न जाने के लिए सब नाटक है। तो वो पूछती है, अच्छा तुम्हारा बहुत पेट दुख रहा है, मैं भी तुम्हारा बापू बेटा, रुको तुम्हें अभी कड़वा कड़वा काढ़ा पिलाता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखोगे। तभी वो उसे बोलते हैं, सुशील बेटा तुम्हारा पेट दुख रहा है ना? ओ मेरे बेटे सो जाओ यहाँ पे, पेट दुख रहा है तो उठते नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अभी तुम्हारे मनपसंद वाला कड़वा कड़वा काढ़ा लेके आता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लग जाएगा और तुम पहले के जैसे जम करोगे। हाँ तो क्या करोगे अभी? कहीं बाहर मत जाओ, पेट दुख रहा है ना, सो जाओ यहीं पे बेड पे सो जाओ, मैं जाता हूँ और अब भी आता हूँ। उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया मतलब लॉक कर लिया। अब ये वो कड़वा कड़वा काढ़ा बनाने के लिए निकल पड़े। सुशील बेचारा विंडो से उन्हें देख रहा था। हे भगवान, मुझे क्या पता था वो कड़वा काढ़ा पीने से तो इतना अच्छा था कि मैं स्कूल में ही चला जाता था। मैंने सोचा क्यों नहीं, मेरे पापा तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकले। अब क्या करूँ? हाय, मुझे वो कड़वा कड़वा काढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा ने दरवाज़ा खोला। कड़वे कड़वे काढ़े की स्मेल अभी तक आ रही थी। छी! सुशील उठकर खड़ा हो गया। पापा ये देखिए, मैं अच्छा हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। ए तब भी पापा बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखते और बोलते, तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो वहाँ पे। मैंने बोला कॉट पे बैठो, बेड पे बैठो। बेटा बैठ गया और पापा ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में वो कड़वे कड़वे काढ़े का कटोरा रख दिया। पूरा कटोरा जब खाली किया तभी वो कटोरा नीचे उतारा। बेचारा सुशील रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। वो कड़वी कड़वी दवा। ऊपर से उसके पापा ने उसे फिर से कमरे में बंद करके चले गए। वो मन ही मन सोचता रहा, पापा कितने बूढ़े हैं फिर भी कितनी अपनी मर्जी से जीते हैं। जब चाहे सोना है, जब चाहे उठना है। मेरे नसीब में वो बातें कहा। यहाँ पापा डोर के बाहर पहरा दे रहे हैं और वो मन ही मन में सोच रहे हैं, मैं जब इसके जैसे छोटा हुआ करता था, मुझे स्टडी करना था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने नहीं करने दिया। हमेशा मुझे काम बताते थे और जो बुक्स मुझे पढ़नी चाहिए थी, जो पढ़ाई मुझे करनी चाहिए थी, वो मुझे करने नहीं दी। काश मेरे पापा मैं जैसे आज हूँ वैसे हो जाते, और कैसे मैं इसके जैसे यंग हो जाता तो क्या होता था। शाम का टाइम था। माँ लक्ष्मी वहीं से जा रहे थे। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी उस टाइम पे जो भी सुनती है वो इच्छा पूरी कर देती है। और लक्ष्मी ने सुना तो लक्ष्मी माँ को लगा कि इन दोनों की भी इच्छा मैं पूरी क्यों ना कर दूँ। वो सुबल के पास आके वहाँ पे खड़ी हो गई, सुनने लगी। तभी सुबल अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, काश मैं सुशील के जैसे फिर से छोटा हो जाऊँ, मेरे बेटे के जैसे छोटा बन जाऊँ। और यहाँ पे विंडो से
सुशील जो है ये मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं मेरे पापा के जैसे जल्दी से जल्दी कितना बड़ा कब हो जाऊं, और अगर हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी लक्ष्मी माँ ने बोला, तथास्तु, कल दोनों की इच्छाएं पूरी होगी। बेटा जो है वो बाप बनेगा और बाप जो है वो बेटा बन जाएगा। सुबल तो मन ही मन सोचता सोचता सो गया। यहाँ सुशील की भी हालत कुछ अलग नहीं थी। वो भी थोड़ी देर जागता रहा और बाद में सो गया। जैसे ही मॉर्निंग में उठा, अरे बाप रे, दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा हो गया था। सुबल जो कि सुशील का पिताजी था, वो अब छोटा बन गया था। बच्चा मतलब सुशील के जैसे बन गया था। उसने कपड़े पहने थे, वो कपड़े भी उसे नहीं हो रहे थे। उसके दांत गिर गए थे। अब सुशील जवान बच्चा होने के कारण उसे वो दूध के सारे दांत आ गए थे। उसकी जो धोती कभी उसे फिट हुआ करती थी, आज वो पूरा झाड़ू लगा रही थी और वो चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो छोटा था तो ये धोती पहन के चलना अब उसे इम्पॉसिबल सा लगने लगा था। यह सुशील जो अपने बेड पे सोया पड़ा था, वो जैसे थोड़ा उठने के लिए आंखें खोली, तभी उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मानो वो बूढ़ा हो गया है। उसने देखा, उसने जब अपने पूरे बॉडी को हाथ लगा के देखा, तब उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो अब बच्चा नहीं रहा, वो उसके पापा के जैसे हो गया है। उसे थोड़ा सा पहले ये क्या हो गया, रातों रात ये इतने टाइट कपड़े, और मेरे सर के बाल कहाँ गए, ये आधे सर के बाल कहाँ गए, और ये क्या, मेरे मुंह पे दाढ़ी भी आ गई। अभी रात में तो मैं सोया था तो बच्चा था, और अब ये क्या हो गया। हे भगवान, मैंने जो मन्नत मांग रही थी, मैं ये मेरी विश का वो पूरी हो गई क्या। मैं तो पापा के जैसे हो गया हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग। हे भगवान, मेरे दांत कहीं पे गिरे हुए हैं तो कहीं पे है, ये मेरा सर आधा गंजा, छी मुझे गंदा लग रहा है। फिर भी उसने जोर से जान भई दी और वो फिर से सो गया, ये सोच के अब मैं पापा बन गया हूँ, मैं बड़ा बन गया हूँ, मैं कभी भी सोऊंगा, मैं कभी भी उठूंगा, मुझे कौन बोलने वाला, मुझे कौन टोकने वाला। ये फिर से दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई थी। पापा जो थे वो बच्चे बन गए थे और बच्चा जो था वो बड़ा बन गया था। लेकिन कॉम्प्लिकेशन अब ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे देखिए, जब वो छोटा था सुशील, तब वो बातें करता था कि मैं बाहर जाऊँ, जंप करूँ, ये करूँ, वो करूँ। पेड़ पे वो आराम से टहला जाता था, पेड़ पे चढ़ता था, पानी में स्विमिंग करना था, बच्चों के साथ खेलता था। खाली वो अपने पापा के जैसे सो नहीं सकता था दिन भर। लेकिन उसे क्या पता था, दिन भर सोने के लिए कितना काम भी करना पड़ता है दिन भर, ये उसे पता नहीं था। लेकिन अब उसे सब पता चलने वाला है। जैसे ही सुशील नहा धोकर उठ गया, उठने के बाद उसे फ़ौरन याद आया कि वो क्या करता था, हमेशा नहा धो के बाहर खेलने के लिए चले जाता था, और बाहर खेलने के बाद वो जो पेड़ है, वो पेड़ की टहलनी को पकड़ के उसकी एक्सरसाइज करता था। यहाँ पे उसने सीधा वैसे ही करने की कोशिश की। उसको लगा चलो अब मुझे तो कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ये बड़ी हो गई है, लेकिन माइंड मेरा बच्चे के जैसे अभी भी है। और वो फ़ौरन उसका जो पसंदीदा पेड़ है, उस पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया। कभी उसे वो जो ब्रांच है ट्रीज़ की, वो पकड़ने के लिए बहुत जंप करना पड़ता था, लेकिन अब आराम से उसकी हाइट बढ़ने के कारण वो उसे पकड़ सकता है। वो ज़ोर ज़ोर से उसे पकड़ने लगा और उसके ऊपर लटकने लगा। पर वो ये भूल गया कि वो बड़ा बनने के साथ साथ उसका वेट भी तो बड़ा बन गया था, ये उसने याद ही नहीं रहा। और जब उसने ब्रांच को एक दो बार, तीसरी बार जब पकड़ा, तो वो डाल टूट गई और टूटने के बाद धड़ाक से वो नीचे गिरा। अब उसकी उम्र हो गई है, तो वो जैसे नीचे गिरा तो ज़ोर से उसे लग गया, और रास्ते से आने वाले जाने वाले लोग उसे हंसने लगे और बोलने लगे, बुढ़ाऊ, बुढ़ापे की उम्र में पेड़ पे चढ़ रहे हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बूढ़ा नहीं है, वो तो सुशील है, जो
भगवान की प्रेयर से बाप बन गया था, मतलब पापा बन गया था। अब यहाँ पे देखिए, जब वो बाहर डोर के पास जाके खड़ा हो गया तो बच्चे उसे, हम उसके जो फ्रेंड है दिनेश, मिनेश, गणेश, ये उसे बुलाने के लिए बॉल लेके आए। पर जैसे ही सुशील को वहाँ खड़ा देखा, सुशील को वो थोड़ी ना पहचानते थे, वो तो उनको वो चेहरा उसके पापा के जैसे लगा। उसको लगा कि इसके पापा अब मुझे मारेंगे, ये सोच के सारे दोस्त भाग गए। बेचारा सुशील मन ही मन सोचता रहा, अरे पागल, मैं नहीं हूँ, जो चेहरा लगा है वो पापा का है, लेकिन मैं हूँ। हाँ, गोपाल, अक्षय, हरी, सुनो सुनो, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। अब क्या करेगा बेचारा, वो तो ये विश मांग के भी फंस गया था। सारे बच्चे शोर शोर कर करके मस्त से खेल रहे थे, और ये पापा बना हुआ ये बेचारा वरांडा में चेयर डाल के दिन भर सोचता रहता था, कितना अच्छा था, मैं पागल था जो पापा बनना चाहता था। यहाँ पे तो बचपन में जितनी मज़ा है वो बुढ़ापे में कहाँ है। बचपन में जितना थोड़ा सा स्टडी करो और पूरा दिन भर मस्ती करो, मैं जिसे बुरा समझता था वो अब मुझे अच्छा लगने लगा है। काश मैं पहले जैसा बच्चा बन जाऊँ। यहाँ पे पापा की भी हालत कुछ अलग नहीं थी। जो पापा दिन भर पढ़ना चाहते थे वो बच्चा बन गए हैं और अपना बुक लेके बैठे हैं, पर दिन भर पढ़ पढ़ के उनको भी बोर हो गया। अब सुशील जो है, इसने सोचा मुझे पापा हमेशा परेशान करते स्कूल जाने के लिए, आज मैं मेरे बाप को परेशान करूँगा। ऐसे सोच के वो जाता है और सुबल को बोलता है, फादर बहुत नाटक हो गए, चलो स्कूल जाएंगे। तभी हमेशा जैसे सुशील रोता है वैसे ही यहाँ सुबल मतलब पिताजी रोने लगे और बोलने लगे, क्या करूँ, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। और ज़ोर से सुशील बोलता है, मुझे सारे ट्रिक पता है आपके, आप जो बोल रहे करके। तो मैंने ये स्टोरी आप लोगों को बता दी। अब मेरी भी विश पूरी कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारे वीडियो देखिए।